ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ کی کچرے کے انتظام اور ری سائیکل مٹیریل کی حفاظت کے حوالے سے اہم حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ کے مطابق کچرے کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے، رضوان احمد ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بنیادی کام ہے وہ گھروں سے کچرا اٹھانا ہے، اور یہ عمل جو ہے 9 سال تقریباً ہو چکے ہیں لیکن مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکا۔ اسی سلسلے میں میٹنگ کی گئی ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے، جس میں کچرا گھروں سے اٹھانے اور ریسائیکل مٹیریل کو بحفاظت ہریالی ہب ریسائیکل پلانٹ تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دینے کی ایم ڈی سالڈ ویسٹ کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کچرے کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ مزید تیز کی جائیں گی، جبکہ کچرے سے ریسائیکل مٹیریل نکالنے سے روکنے کے لیے پلان بھی جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ ریسائیکل مٹیریل کی ہر صورت حفاظت کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے طارق علی نظامانی کی جانب سے، جبکہ سپروائزر اور ڈرائیورز کو اس سلسلے میں ٹریننگ دینے کی بھی بات کی ہے۔ نجی کمپنیز کو ہدایت کی ہیں ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے۔ شہریوں کو بھی کہا گیا ہے کہ سوکھا جو ان کا کچرا ہے اور گیلا کچرا اس کو الگ الگ گھر پر رکھیں، اور اس سلسلے میں جو ہے اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کی جائے، جبکہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد اور کچرے کارآمد اشیاء نکال کر کچرا پھینکنا شہر میں پھینکنے والے جو افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کے لیے جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جاں مہتاب ڈھر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ شرجیل انعام میمن کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، آج گھوٹکی کے علاقے میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں جاں مہتاب ڈھر، ان کی گاڑی پہ مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، جس میں ان کے 2 گارڈ جہاں بحق ہوئے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے جاں مہتاب ڈھر کے قافلے پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور واقعے میں کہا ہے کہ 2 افراد کے جہاں بحق اور متعدد زخمی ہونے پر وہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ واقعے میں جہاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا ہوں، یہ کہنا تھا شرجیل انعام میمن کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، کسی کو بھی امن امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، نارتھ ناظم آباد سیکٹر 71 میں پانی کی قلت، علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ شہری 3 گنا زائد قیمت پر پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ تفصیلات جانیں گے رضوان احمد کی اس رپورٹ میں۔ میں پانی کی قلت بڑھنے لگی۔ نارتھ ناظم آباد سیکٹر 7D1 میں پانی کا بحران، 15 روز بعد فراہم کیا جانے والا پانی 1 ماہ سے بند۔ مکین کہتے ہیں رمضان المبارک کے باوجود 1 ماہ سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پانی کے بحران کی وجہ پمپنگ اسٹیشن کے کیبل کی چوری بتائی گئی، جو نصب ہونے کے باوجود پانی نہیں مل رہا۔ یہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے پانی کا۔ آپ کو سننے میں یہ ہے، جب ہم نے معلومات کیا تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اجمیر نگری سے کوئی کیبل وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے چوری ہو گئی ہیں، تو اس سلسلے میں کافی ڈسٹرب رہے ہم لوگ۔ لیکن ہمارے یہاں کے ایم این اے جو ہیں اور ایم پی ہیں، ان سے ہماری رابطے میں ہے، انہوں نے کچھ یہاں پہ تعاون کر کے یہ کیبل وغیرہ کا سلسلہ شروع کرا ہے، لیکن ابھی بھی پانی کی روانی جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہی پراپر طریقے سے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قلت آب کے باعث ٹینکر مافیا نے نرخ 3 گنا بڑھا دیے۔ مکین مل جل کر ٹینکر منگواتے ہیں، جس کے باعث بعض اوقات وضو کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ پانی تو جو ہے نا کافی عرصے سے جو ہے پانی آتا نہیں ہے صحیح سے، یعنی کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا 10 دن 15 دن کے بعد آ جائے گا، اب تو مہینہ لگتا ہے تقریباً پانی آنے میں۔ اور ہمیں بہت سارے ایک بڑا فلیٹ ہے یہاں پہ، اور مطلب لوگوں کے پاس گنجائش نہیں رہتی ٹینکی کے رکھیں، تو اس حوالے سے نا بڑی مشکلات اور پریشانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ٹینکر جو آ رہے ہیں نا ابھی، وہ پہلے 2000 2500 3000 میں آ جایا کرتا تھا، وہی ٹینکر ابھی 10 سے 12 ہزار روپے کے آتے ہیں۔ شہریوں نے پانی کے حالیہ بحران کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے اس کی بندش فوری دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی روزہ کا افطار، گھروں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی افطاری کے پر رونق مناظر دیکھنے کو ملے۔ چھیپا ویلفیئر کی جانب سے چھیپا سینٹر پر افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب سے کچھ لمحے پہلے ہمارے نمائندے ممتاز شگری وہیں پر موجود تھے، تفصیلات ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, कराची में जिस तरह घरों में इफ्तारी के मौके पर ख़ास पकवानों का इंतजाम किया जाता है, इसी तरह सड़कों पर जो है इफ्तारी के पुररौनक मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस वक्त मैं छिपा सेंटर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में रोज़ेदार मौजूद है, उन्हें इफ्तारी किया जाता है। फर्स्ट रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक जो है ये सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर मर्दों के लिए एक अलग इंतज़ाम है, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम रखा गया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है एक अलग इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ वॉलंटियर्स की काफ़ी तादाद जो है जो रोज़ेदार यहाँ पे मौजूद है, उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे सर्व किया जाता है। इस वक्त वॉलंटियर औरंगज़ेब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। औरंगज़ेब, बताइएगा कब से ये सिलसिला जारी है, कितने अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी सर्व करते हैं? देखें, ये फर्स्ट रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर जीबा फाउंडेशन की जानिब से 1 लाख रोज़ेदारों के लिए सहर व इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। इस वक्त ये शारा फैसल हेड क्वार्टर के हमारा इफ्तार दस्तरखान है, मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों का जो है ना हुजूम यहाँ पर मौजूद है, जो अपना रोज़ा इफ्तार करने के लिए हैं। जी बिल्कुल, छिपा की जानिब से जो है इस वक्त हेड क्वार्टर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हज़ारों अफराद जो है यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा पूरे कराची में तकरीबन लाखों की तादाद में जो रोज़ा इफ्तार करने वाले रोज़ेदार हैं, उन्हें इफ्तार कराया जाता है और ये सिलसिला जो है आखिरी रोज़े तक जारी रहेगा। जी, रमज़ानुल मुबारक के महीने में रुकने सूबाई असम्बली आसिफ मूसा की जानिब से बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर दस्तरखान लगाया गया और शहरियों को इफ्तार करवाई गई। रुकने सिंध असम्बली आसिफ मूसा कहते हैं कि फाउंडेशन एक छोटे से दस्तरखान से शुरू किया था जो आज वसी तर होता जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगी अक्सर शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, 15 रोज़े गुजर चुके हैं और शहर कराची की अगर हम बात कर लें तो शहर कराची की सड़कों पे जो रौनक लगती है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, वो कुछ इस तरीके से लगती हैं कि इफ्तार के दस्तरखान जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो लगाए जाते हैं मुख्तलिफ सड़कों पर। इस वक्त मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ और हमारे रुकने सूबाई असम्बली आसिफ मूसा की जानिब से भी जो है वो एक दस्तरखान लगाया जाता है, जो अपना फाउंडेशन भी चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कितने अरसे से अपना फाउंडेशन रन कर रहे हैं और हर साल कितना इजाफा कर रहे हैं अपने दस्तरखान में? देखिए, ये 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। वालिद साहब के नाम से एक फाउंडेशन बनाई थी और छोटा सा दस्तरखाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग इफ्तार करते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमारे बल्दिया टाउन में जो मेरा हल्का है और बाहर भी हम कोशिश करते हैं कि जो मुसाफिर और जो राहगीर हैं जो अपने घर पे टाइम से नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए ये हम इंतज़ाम करते हैं। और जो हमारी टीम में जो वॉलंटियर्स हैं वो बिला किसी मुआवजा यहाँ पर वो खिदमत के जज्बे से सरशार काम कर रहे होते हैं। अभी हमारे भाई यहाँ पे इनकी ड्यूटी है यहाँ पर, लेकिन ये भी हमारे साथ मिलकर यहाँ सर्व कर रहे होते हैं लोगों के लिए। तो ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें जो मुसलमान हैं वो बढ़ चढ़ कर कोशिश करते हैं कि रोज़ा अफ्तारी के लिए लोगों के लिए आसानियाँ भी करें। उनके लिए जो सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पर है ट्रैफिक का था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये भाई की हमारी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है तब से ट्रैफिक के हालात बड़े कंट्रोल में हैं। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज से यहाँ पर जो वॉलंटियर्स खड़े हुए वो मुख्तलिफ एरियाज से आए हुए हैं और वो इसमें फ़ंड भी करते हैं और डोनेशन भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अपनी खुशी से खुद कमा के और इसमें डालते हैं और लोगों को रोज़ा अफ्तारी भी करवाते हैं। हर एक जो है वो इस हिस्से इस जो चीज़ है बाबरकत दस्तरखान में अपना हिस्सा डालता है, जितना भी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। और सबसे बड़ा मसला जो होता है इस वक्त ट्रैफिक की रवानगी होती है, क्योंकि अगर कहीं पे भी ट्रैफिक जाम होता है तो ये देखा जाता है कि लोग घरों को जो वो देर से पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है इफ्तार जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है और दस्तरखान जो है वो पूरा एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। और आप लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो रोज़े की आखिरी लम्हात में जब उनको लगता है कि वो घर नहीं पहुँच पाएंगे तो वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ रोक के जो है दस्तरखान में बैठ के जो है वो इफ्तार करते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 9 बरस बाद भी मुआहदे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सदर सर्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि अदम इस्तेमाल से अरबों रुपए की मशीनरी नाकारा होने लगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। बरसों गुजर गए लेकिन कराची में सफाई सुथराई का मसला हल ना हो सका। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में वजूद में आया और 2016 में निजी कंपनी से मुआहदा किया, जिसके तहत डीएमसीज की मशीनरी अमले समेत उनके हवाले की गई, मगर सफाई की मशीनरी इस्तेमाल करने के बजाय निजी कंपनीज ने वर्कशॉप में खड़ी कर दी। अरबों रुपए मालियत की ये मशीनरी नाकारा हो रही है। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह बोले, MD सॉलिड
सॉलिड वेस्ट से इस अहम इशू पर मुलाकात की है। सर वो जो है एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी साहब, सेक्रेटरी बोर्ड मुबीन शेख साहब से और ईडी फाइनेंस जो है रहमतुल्लाह शेख साहब से मुलाकात करके उन्हें बारवर कराया कि चूँकि ये मुआहदा है इस कंपनी का ख़त्म हो चुका है और गुज़श्ता साल को 30 जून को ये स्टाफ वापस कर दिया गया, लेकिन मशीनरी वापस नहीं की गई। पीपल्स लेबर यूनियन के नायब सदर असलम बलोच बोले, अंधेर नगरी चौपट राज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड निजी कंपनी से मुआहदे पर अमल कराए और मशीनरी दुरुस्त करके टाउन्स के हवाले की जाए। यहाँ चौपट राज लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। और हमारे जो यूनियन है शाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी जद्दोजहद को सलाम करता हूँ। उनकी वजह से तमाम खामी और बुराइयां जो है ना हाईलाइट हो रही हैं। मशीनरी दुरुस्त करके टाउन हुकूमतों के हवाले करने से जहाँ शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होगा, वहीं कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी बचत बाज़ारों में महंगाई का राज, मनमानी कीमतों पर सब्जियां, फलों की फरोख्त का सिलसिला न थम सका। बचत बाज़ार इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के आगे बेबस और शहरी परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। बचत बाज़ार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। गुलशन इकबाल के इतवार बचत बाज़ार में नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म, सब्ज़ी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। 40 रुपये किलो वाला आलू 75 रुपये किलो तक दस्तयाब। प्याज सरकारी कीमत 40 रुपये किलो के बजाय 75 रुपये किलो में फ़रोख्त। देसी लहसुन 340 रुपये किलो के बरअक्स 550 रुपये किलो तक जा पहुंचा। 340 रुपये किलो वाली देसी अदरक बचत बाज़ार में 550 रुपये किलो तक दस्तयाब। फलों में अमरूद 150 रुपये किलो के बजाय 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त। 250 रुपये किलो वाले सेब के 350 रुपये वसूल। शहरियों ने शिकवा किया कि बचत बाज़ार बेमकसद हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि एक छत तले सब अशिया मिल जाती हैं। देखें, जो एज़ पर जो लिस्ट है हमारे पास कमिश्नर कराची ने इशू किया है, उस लिस्ट के मुताबिक प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं। मैं सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी में काफ़ी रिजनेबल, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को इन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ है बेचने के लिए, वो अपनी मनमानी बेच रहे हैं। मैं जैसे लोग 2% 1% लोग होंगे जो इनसे आर्गूमेंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद फिर इनसे लेते हैं। लेकिन आम तौर पे जो यहाँ पे रिवाज है वो दूसरा है। वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, किसी में कोई इनकी पूछने वाला नहीं है। हर आदमी को, कितने लोगों को, इंस्पेक्टर को बुला के आप उनसे बात करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कानून जो सब्जियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रही यहाँ पे। और अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट की जो इस वक्त मार्केट के हिसाब से जो रेट्स हैं वो महंगी है यहाँ बचत बाज़ार पे। कमिश्नर साहब को मैं कहूँगा कि जनाब आप अपने फ्रूट के रेट्स को रिव्यू करें, अब ये रेट सही नहीं है। ख़ास तौर पे बचत बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है कमिश्नर कराची साहब ने जो लगाया है वो बिल्कुल यहाँ फौत हो चुका है और यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी चीज़ की भी। और स्पेशली मैं आपको फ्रूट की भी है, फ्रूट पे अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। फ्रूट भी जो अपनी मर्ज़ी से जो रेट है उस पर भी नहीं बेच रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी कीमतों पर अमल कराए तो बचत बाज़ार बामकसद हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। सड़कों की खाक छाने वाले ऑनलाइन बाइक राइडर्स पेट्रोल की कीमतों में कमी के मुंतज़िर। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। मोटरसाइकिल का पहिया चले तो घर का चूल्हा जलेगा। इतवार के रोज भी रोजी के उसूल के लिए सड़कों पर बाइक राइडर्स नजर आए जो मुंतजिर थे कि शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए और इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद इसका फायदा इन तक मुंतकिल ना हो सका। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल के अखराजात की वजह से बचत नहीं हो पाती। पेट्रोल कम हो ही नहीं रहा। पेट्रोल इतना महंगा है कि भाई सवारियाँ जाती हैं तो फिर पैसे पूरे नहीं मिलते। तो गुजारिश ये है कि पेट्रोल थोड़ा कम किया जाए। 200 रुपये सवारी लेके जाते हैं, 250 रुपये पेट्रोल लेते हैं। पैसे हमारे को बचत नहीं थे। अभी 200 रुपये का आयल था, अभी 500 रुपये का आयल हो गया। लाजमी ये ट्यूब 200 रुपये का था, अब 600 रुपये हो गया। अभी इतना पेट्रोल महंगा हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आग बना के रख दिया। अब बस ये मेहरबानी करो, पेट्रोल आटा ये चीनी वगैरह सस्ता करो, आपकी बहुत मेहरबानी होगा। असल की बात ये बेखे वाला तो बहुत ख्वार हो गया। तो सुबह से निकलते हैं शाम तक पेट्रोल का पैसा नहीं पूरा होता है। हम लोग भाई बहुत परेशान हैं
अब जब तक अलमी मंडी से पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये कौन सा तरीका है कि भाई इधर सस्ता नहीं हो रहा है। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करती है, जिसमें शहरी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के मुंतज़र रहते हैं और कीमतों में इजाफा इनकी मायूसी का सबब बनता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्विस सदरन गैस कंपनी अपनी रविश से बाज न आई, सहरी और इफ्तारी में शहरियों को गैस न मिल सकी, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। माह सयाम में भी गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरियों को सहरो इफ्तार में मुश्किलात का सामना। LPG माफिया ने ओगरा के नरखों को नज़रअंदाज कर दिया। फ़ी किलो LPG 247 के बजाय 270 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में भी गैस फराहम नहीं की जा रही, बग़ैर गैस के सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर हैं। गैस का बिल भी भरते हैं और महंगी LPG भी डलवा रहे हैं, अखराजात बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत मुश्किल आता है भाई, हम खुद गरीब आदमी है और हमारा बच्चा है ना बेचारा मजदूरी करता है, एक गैस का बिल भरे फिर दूसरा इधर सिलेंडर भरा है, हमारे से नहीं हो सकता। शहरी कहते हैं कि उनके इलाके में 2 साल से गैस गायब है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल भी आता है, गैस नहीं होता, बिल बहुत देते हैं, गैस नहीं आता, फिर ये गैस भरवा के यहाँ से इस्तेमाल करते हैं गैस। माई गाड़ी में गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, 500-600 घर है उसमें गैस नहीं आ रहा है बाबा, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। कमिश्नर कराची ने सहरो इफ्तार के दौरान बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है, जिस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में ईद शॉपिंग का आगाज़, छोटी मार्केटों में खरीदारी का रुझान ज़्यादा। रंचोड़ लाइन मार्केट में दिन के औकात में रश। नायब सदर रंचोड़ लाइन मार्केट एसोसिएशन शाहिद सुजीला कहते हैं कि कारोबार गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा है। इस मार्केट में लोगों को सस्ते दामों मलबूसात मिल जाते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। मार्केट तकरीबन रात को 3 बजे तक ऑन है और इसकी बुनियादी वजह है कि हमने दुकानदारों को कहा है कि यहाँ पर बहुत गरीब तबका आता है तो अपना मार्जिन कम रखें, प्रॉफिट कम रखें और अपनी सेल बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब को फ़ायदा हो सके। सस्ता मिलता है तो आते हैं हम, गरीबों के लिए तो यही सही है। रंचोड़ लाइन मार्केट हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पर, कपड़े, जूते, मेकअप, चूड़ियाँ, सब कुछ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम में तो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है और माशाल्लाह से काम जो है पहले से बेहतर हो चुका है और वैरायटी माशाल्लाह काम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अब काम पहले से मतलब बेहतर उठने लगा है।